students and my dear friends. In the last video, we have discussed the topic of problem of excess demand, inflationary gap, causes and its effect on the economy. In today's video, we are going to discuss about the other part of it, that is deficient demand, problem of deficient demand. Let's start discussing it. So first, I like this topic because if you have done the excess demand, automatically you can do the deficient demand also. You have to reverse some of the things, so that's why I like this topic. If you complete half of the if we have understood the concept of excess demand, then automatically you will understand the concept of deficient demand also. Let's start doing it. So first we will start with the problem of deficient demand. We will start with the meaning of deficient demand. What is deficient demand? So it is a situation when aggregate demand is less than the aggregate supply corresponding to the full employment level. जब aggregate demand कम है as compared to the aggregate supply corresponding to the full employment in the economy, then it is called the problem of deficient demand. The important words are corresponding to the full employment level. स्टूडेंट्स बी केयरफुल, जब आप डेफिनेशन इवन बोर्ड में जब आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो कुछ टर्म्स देखी जाती हैं कि आपने वो लिखी हैं या नहीं लिखी हैं. तो अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, it's okay, but if you want to score full marks then you have to write down corresponding to the full employment level. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एडी जितनी होनी चाहिए उतनी एडी नहीं है, कम है, तो डेफिशिएंट डिमांड होती है. एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इस सिचुएशन को, डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो स्ट्राइक होगा, ए डी विल बी इक्वल टू ए एस, बट इट इज नॉट स्ट्राइकिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. It is striking at underemployment, far below the full employment level. जितना full employment level होना चाहिए वहाँ strike नहीं करके उससे नीचे level पे strike कर रहा है ये equilibrium. That's why it is called underemployment equilibrium. And then deficient demand leads to the problem of deflationary gap. Deficient demand leads to the problem of deflationary gap in the economy. Let's understand what is deflationary gap. So what is deflationary gap? When a gap arises when actual aggregate demand is less than the aggregate demand required to maintain full employment level. इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे कम रह जाती है, then a difference arises, that is called deflationary gap. Suppose full employment maintain करने के लिए इकोनॉमी में 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 1000 यूनिट की डिमांड की रिक्वायरमेंट है, बट एक्चुअली में डिमांड सिर्फ 600 यूनिट्स की हुई है, तो उसकी वजह से एक गैप अराइज हो गया है, दैट इज द गैप ऑफ 400, यानी 400 यूनिट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड deflationary gap. Let's understand the diagram also. So this is the diagram of deflationary gap as you see on the screen. As usual, on x-axis the output and income is shown, on y-axis AD and AS is shown. A 45-degree line, that is AS curve, upward sloping from left to right. Then the red line, AD curve, red line is the you can say the planned or the aggregate demand required to maintain full employment level. फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए कितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, जो रेड लाइन से रेड कर्व है उससे शो किया गया, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी एट पॉइंट ई, और हमें कितना आउटपुट बनाना है, OM. बट एक्चुअली the actual aggregate demand curve is indicated by the dotted line below the planned aggregate demand, and the new equilibrium is striking at E1. The new equilibrium is striking at E1. So actual full employment के लिए production होना चाहिए था
EM, बट एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है हमारा OM1, यानी जितना हमारा कैपेसिटी है उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक गैप अराइज हो गया, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. एंड M1 जो गैप है बिटवीन द आउटपुट M1 एंड M, इट शोज द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. It shows the excess capacity in the economy. So to maintain full employment, we require the aggregate demand EM, but actual aggregate demand is BM. So BE is the deflationary gap. So this is BE is the deflationary gap. I will share with you the video how to draw the diagram also at the end of this video. So next comes, so this is deficient demand when when AD is less than AS, corresponding to full employment level, and it is called underemployment equilibrium because still AS is equal to AD even at even AS is equal to AD, but there is unemployment in the economy, and that's why it is called underemployment equilibrium. Now let's start discussing the causes. As we have discussed in the case of excess demand, the same factors are responsible even for the deficient demand, but now the reverse is there. जो पहले हमने एक्सेस डिमांड में डिस्कस किए थे कॉजेज, सेम वही कॉजेज हैं, लेकिन यहाँ रिवर्स है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो द फर्स्ट कम decrease in consumption expenditure. What is happening? Why the level of AD is low in the economy? Because the household sector doesn't want to spend the money. MPC is quite low and MPS is high, और हाउसहोल्ड सेक्टर सेविंग करना चाह रहा है, वो खर्चा नहीं कर रहा है. द हाउसहोल्ड सेक्टर इज नॉट डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सो दे वांट, द हाउसहोल्ड सेक्टर वांट्स टू कीप द मनी इन हैंड्स, दे डोंट वांट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ लो MPC and high MPS, the aggregate demand level is overall is quite low in the economy. Now comes the next, decrease in private investment expenditure. So there is a pessimistic sentiments in the market. Businessmen are not hopeful about the market situation. They are aware about the prevailing situation in the market. Businessmen को, इन्वेस्टर्स को पता चल रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी में पैसिमिज्म है, कंज्यूमर रेडी नहीं है गुड्स खरीदने के लिए. सो दैट्स वाई जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू इन्वेस्ट द मनी इन एनी प्रोजेक्ट्स, एंड बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. उन्हें पता है कि ऑलरेडी मार्केट में पैसिमिज्म है, एक निराशावाद हो चुका है, क्योंकि कंज्यूमर्स मार्केट में नहीं आ रहे हैं, वो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को लग जाता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, इसलिए वो भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं. प्राइवेट बिजनेसमैन भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इकॉनमी में ओवरऑल AD काफ़ी लो है. नाउ कम्स द नेक्स्ट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट भी अपना खर्चा कम कर रही है, बोथ ऑन द वेलफेयर प्रोग्राम्स एज वेल एज ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट है उसने बजट में अपने एक्सपेंडिचर्स भी कम कर दिए हैं, स्पेंडिंग्स कम कर दी हैं, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, या फिर वेलफेयर प्रोग्राम है. द रीज़न में भी ड्यू टू बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स होने की वजह से, लिमिटेशंस होने की वजह से गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया. अब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, सो देयर विल बी लेस फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू द पब्लिक. जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो क्या होता है, लिक्विडिटी आती है इकॉनमी में, लेकिन जब गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं करेगी तो इकॉनमी में लिक्विडिटी नहीं आएगी. इस वजह से भी AD का लेवल कम है. नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज the next is decrease in exports and increase in import. If you look at the picture, so imports are heavier, the side of imports are much heavier as compared to export, यानी हम import ज़्यादा कर रहे हैं और export कम कर रहे हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे exports कम क्यों हो रहे हैं, इंडियन गुड्स, सपोज इंडियन या डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्यों कम है और फॉरेन गुड्स की डिमांड ज़्यादा क्यों है. ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स
या फॉरेन गुड्स आर मच चीपर एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक गुड। इसलिए फॉरेन गुड्स की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ गई है और वेयर एज इंडियन गुड्स की या डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट में कम हो गई है। तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं और इंपोर्ट बढ़ गए हैं। अब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? देयर इज़ मोर आउटफ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम द इकॉनमी। इम्पोर्ट्स पेमेंट की वजह से हम कम रहे हैं, इनकम कम हो रही है, जबकि हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इससे क्या होगा कि इकॉनमी में मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ अ आउटफ्लो ऑफ द करेंसी फ्रॉम द इकॉनमी, और इसकी वजह से भी एडी का लेवल, एग्री की डिमांड का लेवल कम है। नाउ कम्स द नेक्स्ट cause, that is increase in taxes. Whether it is direct tax or whether it is indirect tax, the tax rates are quite high. तो इकॉनमी में टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड सेक्टर के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बच रहा है टू स्पेंड। जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे, टैक्सेस का बर्डन ज़्यादा होगा, तो इनकम कम बचेगी, और जब इनकम कम बचेगी सो पीपल विल डिमांड लेस गुड्स एंड सर्विसेज। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द ओवरऑल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज क्वाइट लो। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द problem of deficient demand. Now comes so next we are going to discuss about the effects of deficient demand. Deficient demand का क्या effect पड़ता है? So अगर हम डायग्राम देखें तो सबसे पहले तो हमें पता है कि there will be unemployment in the economy. Production will be quite less as compared to the full employment level. जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं slide per slide. So the first come deflation. So first effect is deflation. Deflation means overall there will be a fall in general price level. जो हमारा प्राइस लेवल है उसमें फॉल हो रहा है। या फिर हम डिफ्लेशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब इन्फ्लेशन 0% से कम हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसफ्लेशन। देयर आर सो मेनी टर्म्स एट दिस लेवल, +2 लेवल पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एट वेरी हाई रेट। और जब इन्फ्लेशन 0% से कम हो जाता है, यानी नेगेटिव में चला जाता है इन्फ्लेशन, तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, यानी ओवरऑल प्राइस लेवल हमारा कम हो रहा है। अब लेकिन इस पे हम ये भी कंक्लूजन नहीं कर सकते कि अगर कुछ एक प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, तो हम कह देंगे डिफ्लेशन नहीं है। सो जो प्राइस लेवल है उसमें ओवरऑल फॉल आ रहा है। और ये क्यों फॉल आ रहा है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो रहा है और डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है। इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई मोटिव नहीं है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे हैं। इवन जो ऑलरेडी फैक्ट्रीज चल रही हैं उसमें भी प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और इकॉनमी में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। So this is the second serious effect of deficient demand. Now comes the next, decrease in GDP. डायग्राम से ही क्लियर था, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारी GDP, हमारा प्रोडक्शन लेवल भी कम रहता है। और इसका रीज़न है क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कंज्यूमर्स डिमांड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स डिमांड नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, इसलिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जितना इकॉनमी की कैपेसिटी है उतने रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। सो नेक्स्ट इम्पैक्ट इज हमारी GDP कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन, अनडिजायर्ड स्टॉक्स एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स।
अब हो क्या रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, जितने भी गुड्स बनाए गए हैं वो भी सेल नहीं हो रहे हैं. प्रोड्यूसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ पाइल्स ऑफ गुड्स. ढेर लग जाएगा गुड्स का. तो उसको क्लियर करने के लिए व्हाट दे विल डू, the seller and the producer don't have any other option but they have to reduce the price, which is called price crash. कि उन्हें प्राइसेस अपने जो अनडिजायर्ड स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. अब जब प्राइसेस कम होंगे तो ये दो तरह से इम्पैक्ट करेंगे. ये किस तरह से? दो तरह से इम्पैक्ट करेंगे. प्राइसेस के कम होने से प्रॉफिट्स का लॉस होगा, और जब प्रॉफिट्स का लॉस होगा तो फ्यूचर में प्रोडक्शन का लेवल कम रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर पहले ही प्रॉफिट्स कमा नहीं पा रहे हैं. सो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आने वाले टाइम में वो और प्रोडक्शन को बढ़ा सके. सो बिकॉज ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक विल इम्पैक्ट इन टू वेज. फर्स्ट, देयर विल बी लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रोड्यूसर विल प्लान लेस प्रोडक्शन इन फ्यूचर. वो फ्यूचर में प्रोडक्शन कम प्लान करेंगे. Next come the deflationary spiral. Deflationary spiral क्या है? क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्राइसेस के कम होने से प्रॉफिट्स का लॉस हो रहा है. प्रॉफिट्स का लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वेजेस कम की जा रही हैं. वेजेस कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इनकम लेवल कम हो रहा है, और इनकम लेवल कम होने से फर्दर डिमांड का लेवल कम हो रहा है. अब ये जो एक सर्कल बन जाता है, दिस इज कॉल्ड लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, और दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी स्पाइरल. विशियस सर्कल हम कह सकते हैं. वन फैक्टर इज लीडिंग टू अनदर फैक्टर. क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन अनडिजायर्ड स्टॉक्स हो रहे हैं. अनडिजायर्ड स्टॉक होने की वजह से प्राइसेस कम हो रहे हैं. प्राइसेस के कम होने से प्रॉफिट्स का लॉस हो रहा है. फर्दर प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से लेवल ऑफ इनकम कम हो रहा है, वेजेस कम हो रही हैं, एंड उसकी वजह से फर्दर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रही है, और डिमांड के कम होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो रहा है. सो दिस सर्कल इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी स्पाइरल, एंड दिस इज कॉल्ड लो इक्विलिब्रियम ट्रैप. इसी को हम क्या कहते हैं? लो इक्विलिब्रियम ट्रैप कहते हैं, जिसमें से इकोनॉमी का निकलना मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट इज डूइंग मोर स्पेंडिंग. क्योंकि प्राइवेट बिजनेसमैन अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि रिटर्न्स नहीं मिल रहे. तो अगर इस सिचुएशन में से हमें निकलना है, सो व्हाट हु हैज़ टू प्ले द रोल? द गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले द लीडिंग रोल. आई होप आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड आई विल अटैच द वीडियो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफ्लेशनरी गैप. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Hit you on BBM, we should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN, take the high road and hop in. Open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open,